Thank you. It's an immense pleasure to once again cater so many wonderful students. Last year we had somewhere around 250 students and now we have somewhere around 300 student participants. So a big round of applause for all the participants here. Since we have wonderful guests as well, so in the series of welcome, since the program is presided by our Honorable Director Sir, so I would like to extend a warm welcome from Alok Senior Secondary School, Fatehpura, Dr. Pradeep Ji Kumawat, under whose guidance we are organizing such wonderful events. Today we have Honorable Vice Chancellor, Dr. Prithvi Yadav Saab. He is the Vice Chancellor of Singhania, Sir Padam Pad Singhania University. We are so honored to have you here as our chief guest. Thank you so much, sir, for coming here. In the series, another our family member, Dr. Hemanji Dabai, Director, Aravali Technical Institute. We welcome you here, sir. Anilji Mehta Saab, Principal Vidya Bhavan, Polytechnic. आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन. Dr. K.D. Amir Saab, who is from RCA College. I would like to welcome all the guests. Along with the guests, we have a jury panel. Kriti Ji Joshi, we welcome you from the third space. Prakash Ji Sundaram, बहुत बहुत आपका स्वागत है. HOD Electrical Vidya Bhavan Polytechnic. नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है. Dr. S.K. Ameta, RCA College, he is also in the jury panel. That's why. Now, I would like to mention the participating schools this year. This is just not an alphabetical series, just the random series. We have students and teachers from St. Anthony, MDS School, Seedling World School, Seedling Public School, Alok Group of Schools, The Study, Ryan International, Witty International, Gyan Mandir. Then we have Central Academy, CPS, Crossroads, St. Paul's, St. Mary's, and St. Gregorius. So from Alok family, I extend a warm welcome to all the participants and accompanied by the teachers from these schools. Now, before we go any further, there has been a lot of talk about AI. And since last year, I believe AI has penetrated the market even deeper. Some facts. The government of India has invested around 10,300 crores in 5 years in the AI infrastructure. Just alone in 2025 and 2026, government has spent 500 crore for establishing a center of excellence in AI for education under that mission. So overall, there are a lot of numbers going around AI, but there is a young generation, there is a young mind here. Along with the plus, the benefits of AI, there is a lot of responsibility on our shoulders to guide these students that how to use this AI responsibly. So I believe today, with the guidance of all the guests, I'm sure you will all the fellow students here how to responsibly use the artificial intelligence as a tool and not as a weapon. Thank you so much once again.
वहाँ पे फिर से कोई नई दिखने वाला बोल रहे हो आप हाँ बैनर में सचिन बाद में कर लेना। ठीक है बाद में ठीक मैं करा दूंगा। निर्भर रखो यहाँ पर ठीक तो रेफरेंस नहीं देखे गया मैंने वहाँ
जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं, आपको पीछे तक आवाज़ आ रही है बेटा? आवाज़ आ रही है वहाँ तक? चलिए 2 मिनट के लिए बात सुनेंगे, और सभी लोग जो हैं वो केवल 2 मिनट 5 मिनट जब तक सर ने कहा आप अपने प्रयोग को करते हुए थोड़ी देर के लिए बात सुनेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जहाँ पे ये पूरा अपना आयोजन कर रहे हैं, जहाँ पे आपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट के सेटअप लगाए हैं, उस संस्था के नाम के नीचे एक चीज़ लिखा हुआ है, भारतीय विश्वविद्या प्रतिष्ठानम। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भारत की जो विश्वविद्या है वो दुनिया का सबसे पुराना विज्ञान है। उस दुनिया के सबसे पुराने विज्ञान को फिर से स्थापित करना, ये मुझे लगता है कि जो आप जितने सारे विद्यार्थी अलग अलग स्कूलों से आए हैं उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। मुझे लगता है कि अगर हम जो हमारे भारत का साइंटिफिक विजडम है उसको आप अपने इन प्रयोगों के माध्यम से फिर से स्थापित कर सकेंगे तो इस दुनिया को जो हम अच्छा बनाना चाहते हैं वो निश्चित तौर से अच्छी बन जाएगी। इतनी कह के मैं आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रदीप सर को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आमंत्रित किया। आप लोग इस पूरे प्रयोग को करें, प्रयोग को करने के साथ साथ और सोचें कि हम इसमें और अच्छा क्या कर सकते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछता हूं जिसमें से किसी को आपको जानकारी हो तो जरूर बताएं। अभी 2 दिन से अखबारों में एक बच्चे का नाम आ रहा है, महेश रेखे। आप में से कितने लोगों ने उस बच्चे का नाम सुना है, महेश रेखे? महेश रेखे नाम के एक 19 साल के बच्चे ने अभी यजुर्वेद के दंडक्रम प्राणायाम, एक उसका एक सूक्त है, उसके अंदर 2000 श्लोक है और 25 लाख पद है, उसका उसने उच्चारण किया 50 घंटे के अंदर। तो उसके अंदर विज्ञान क्या है? तो अब वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी नेस्टेड सीक्वेंस थ्योरी है जिसका प्रयोग करते हुए उस बच्चे ने इतने सारे मंत्र पढ़ डाले। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना है, जो आलोक के नीचे के उस संस्थान के नीचे जो संस्थान का नाम लिखा है विश्वविद्या प्रतिष्ठानम, भारत की विश्वविद्या है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत कुछ की मेटलर्जी, हाइड्रोलॉजी, एटॉमिक साइंस, सब कुछ है। उसको फिर से एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्रयोगों के माध्यम से स्थापित कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for enlightening all the students here. It's my honor and privilege to be at this prestigious school. And on the day when so many kids are displaying their innovations, their projects, that's the beginning of their design thinking. And I must
congratulate the Alok school for taking this lead, motivating the students, particularly the kids, for displaying their innovations, their thinking, and their design thinking process. Particularly when we, in the university setup, manages the students from the innovations point of view, we face a lot of challenge. And particularly the residential campus, managing the new age kids, it's a big challenge. So I am really very happy to see the tradition of this school, Alok Sansthan, inculcating these Hindu culture, Sanatani culture, making them aware about our traditions, and making the kids today a truly the Indian system and our Sanatani system, the culture. I must confess here the kind of the challenges we face in the university, particularly in the residential students, all types of problems, all types of challenges. And that's a big learning for all of you. How do you all inculcate these Indian rituals, Indian traditions, right from your school age? And that is the need of time today. So I must congratulate all of you here displaying your innovations, since today we all talk about new education policy, particularly the skills in the university setup and in the school setup. Now a lot of emphasis are being given for the skill education. And skill is going to be the new era in the entire corporate setup, in the entire learning setup. So as early as possible, you all display your innovations, your design thinking, and converting those design thinking innovations into the practicals which you are all displaying, that would provide you the lead role when you come to the higher studies in the university setup. And that is the motivation for all of you to build up your career. Today, when we see the opportunities, it's not only limited to the engineering technology. Now it's open almost in all streams. And those kids are present here. Let me tell you that even the SPSU University here, we have the exposure opportunities, sports management in new area which is being immersed in the entire country, but there are very less professionals available. So there is an opportunity available for you to take up sports management as the career. Design thinking is another career. It's very different from the technology. It's very different than the science. So B Design is the another program
which gives you the opportunity to think beyond the conventional subjects. Plus, AI and ML is the talk of the town today. Everybody is talking about AI, ML. But how to use AI, ML in the management and the actual field? So there is an opportunity available in the social sciences. When you do your BBAs and other programs, there also you can use the AI, ML for your practicals. So today, the message I wanted to convey to all the kids, school teachers here, that motivate your students right from the school age to think beyond the conventional fields available. Motivate them to think beyond what is conventional at this point of time. That is the future, that is the future career, and that is their learning style going to come in the future. So my best wishes to all the kids here, displaying their projects, displaying their innovations, displaying their thinking process, and I would expect that they would all take it forward and make it this as their career. So once more, I congratulate the Alok School for making a platform for all these students to display their practicals, their thinking process, and making it a practicals to demonstrate. So thank you all for participating, and thanks for inviting me here to interact you all. Thank you all. हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर पृथ्वी यादव जी, जिनके बारे में बहुत कुछ यहाँ उनकी क्वालिफिकेशन के लिए बोला गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत अच्छे इंसान भी हैं और उनमें बहुत अच्छी समझ भी है शिक्षा की। ऐसा मेरे पास थर्ड आई शिवजी वाली तो नहीं है, लेकिन मनोविज्ञान में पिछले कई सालों से विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे वो समझ है कि आप में वो तासीर है कि आप एक वाइस चांसलर होने के बावजूद भी आप अपने ईगो को परे हटकर शिक्षा के साथ जुड़े हुए बच्चों के बॉटम लाइन से लेकर ऊपर तक आप कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आपका बहुत स्वागत है बच्चों। 2 मिनट बस, बिल्कुल मरमरिंग भी नहीं चाहिए मुझे, मेरी आदत थोड़ी अलग तरह की, मैं जब तक पिन ड्रॉप साइलेंस नहीं हो मैं नहीं बोलता। हमारे साथी और पर्यावरण में मैं भी जिनके साथ कई बार काम कर चुका हूं और अभी भी कर रहे हैं, भाई अनिल मेहता जी, मेरे अपने स्टूडेंट डॉक्टर हेमंत धाबाई, इनको मैंने यही इसी प्रांगण में कई बार अपने भाषणों से, अपनी बात से इनको प्रभावित किया है। डॉक्टर केडी आमेटा सर, आरएसके कॉलेज से पधारे, आपका भी स्वागत एक बार पुनः। कृति जी, थर्ड स्पेस से प्रकाश सुंदरम जी, नितिन जी और डॉक्टर एसके आमेटा सर का नाम दोनों आमेटा है, दोनों ही आरएसके से हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है हमारे देश में, अंग्रेजों के आने के बाद की विज्ञान का जितना भी विकास है वो सब पश्चिम की देन है। अगर हम शून्य नहीं देते तो ये पश्चिम विज्ञान जगत किसी भी दृष्टि से विकास नहीं कर पाता। तो मूल आधार यदि कोई भारत के विज्ञान का कोई आधार है तो वो भारतवर्ष है। दुर्भाग्य से हमारे 76 लाख जो गुरुकुल थे वो एक तरह विल डुरांट की बुक है, केस ऑफ इंडिया। उस विल डुरांट ने स्टडी करके ये भेजा गया था कि भारत के गुरुकुल बेकार है, आप इस पे लिख दो। उसने लिखा इसका उल्टा कि अंग्रेजों ने आकर इस भारत की गुरुकुल व्यवस्था को बर्बाद किया, जो कि बहुत प्रभावी थी, और इन्होंने जिस ढंग से अपनी बातें थोपने के लिए
इनको मिथक बनाया भारत की इस वैदिक संस्कृति को, ये सबसे बड़ा अपराध अंग्रेजों ने किया है। तो मैं बच्चों आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अभी विज्ञान के आप बहुत विद्यार्थी, आपने बहुत क्रिएटिविटी, अभी मैं इन दिनों आपने एक बच्चे को देखा होगा 12th क्लास के, उसने अपनी एक मैडम को एक एआई से रोबोट बनाया और वो टीचर पढ़ा रही है, 12th क्लास का स्टूडेंट। तो आप में इतनी प्रतिभा है, इतनी क्रिएटिविटी है, इतना साइंटिफिक एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है आप में, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके माँ बाप से और आपके टीचर से आप ज्यादा इंटेलिजेंट इन दैट वे दैट यू नो मच मोर टेक्नोलॉजी देन योर फादर्स एंड योर टीचर्स। यू आर टेक्नो सेवी इन दैट वे। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मिसयूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो रहा है, बच्चों को प्रोजेक्ट दिया, एआई पे मारा, कॉपी मार लिया। इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग बंद करिए। पहले खुद लिखिए, आपकी क्रिएटिविटी को आप खुद अपने पेपर पे लिखिए, और उसको अगर इंप्रूव करने के लिए एआई को फीड देते हैं और वो एआई उसको इंप्रूव करता है, वहां तक तो ठीक है, बाकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी इस दुनिया से। एक कवि जो बेचारा इतने भावों से कविता लिखता है, वो चीजें गायब हो जाएगी। जो आलेख व्यक्ति अपनी कलम चलाकर लिखता है, वो एआई उसको 2 मिनट में जेनरेट करके परोस देता है। तो वो कितने लोगों का, मैं समझता हूँ, रोजगार तो छोड़िए, ह्यूमन इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे। तो विज्ञान का सही उपयोग करने के लिए भारत की संस्कृति, भारत की शिक्षा आपको विवेक देती है। We give the wisdom through our knowledge that you can understand what is right and what is wrong. और वो काम हम कर रहे हैं। इसलिए हमने यह विज्ञान का मेला इसलिए लगाया कि आप लोगों के अंदर जो एक क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसको बाहर निकालो। अंत में एक बात है कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अब वेदों में मैंने चूंकि वेद पढ़े हैं और मुझे आश्चर्य हुआ जब वेदों को पढ़ते पढ़ते पता चला कि उसमें विमान बनाने के लिए भी श्लोक है। विमान कैसे बनाया जाता है वो श्लोक उसमें है। लोग पहले हवा में बात करते थे, लेकिन वास्तव में उनमें ये सारी बातें मौजूद है। हम सोचते थे पुष्पक विमान में मजाक की बात है, लेकिन उस समय वो टेक्नोलॉजी थी। अभी मैं कुरुक्षेत्र गया था, अब तो उन्होंने उसको कांच के पिंजरे में बंद कर दिया, पेड़ को पता नहीं क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब मैं गया था तब वो पेड़ खुला हुआ था जहां पर गीता का प्रादुर्भाव हुआ। तो रशियन साइंटिस्ट इस बात पे लगे हुए कि वो वेव फाइल्स आज भी कहीं न कहीं एटमॉस्फेयर में जिंदा है। उन वेव फाइल्स को कैप्चर करके उन श्लोकों को पकड़ा जा सकता है। ये आज भी वो रिसर्च और बहुत कुछ रिसर्च हो चुकी है। तो मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग, आप सब बच्चों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि विज्ञान में और ज्ञान में भारत विश्व गुरु था, और आध्यात्म में तो भारत हमेशा ही विश्व गुरु रहा है। अब हम विश्व गुरु की राह पर चल पड़े हैं। हमारे पास एक यशस्वी प्रधानमंत्री आए जिन्होंने बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए अडल्ट टिंकरिंग लैब केवल सरकारी स्कूल तक नहीं है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी उन्होंने कहा कि आप लो, और उसके लिए उन्होंने स्पेशल बजट बनाया। आज हमारे स्कूल में भी अडल्ट टिंकरिंग लैब है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मोदी जी की योजना के अंतर्गत ही हमको मिली हुई है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश के बच्चों के लिए बहुत चिंता करते हैं। उन्होंने खेलों को जो बढ़ावा दिया है, हर बार टीम जीत के आती है। प्रधानमंत्री को क्या पड़ी है, वो छोटे से छोटे खेल के खिलाड़ी को भी अगर वो विश्व मेडल पर जीत के आता है, उसको बुलाते हैं, उसके साथ बातचीत करते हैं और उसकी भेंट स्वीकार करते हैं। चाहे वो टी शर्ट देता है, जर्सी देता है, या बैट देता है, या बॉक्सिंग ग्लव भी उनको प्रेजेंट करता है, तो स्वीकार। तो बच्चों के लिए अगर कोई एक मसीहा के रूप में, एक कृष्ण के रूप में, एक राम के रूप में कोई एक अच्छा बड़ा नेता है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री। आपके लिए बहुत चिंता करते हैं, विज्ञान को बहुत बढ़ावा देते हैं। यहाँ तक कि वो सोशल मीडिया में जो टॉप लीडर्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी उन्होंने कॉन्फ्रेंस कर दी। वीडियो गेम्स बनाने वालों को बुलाकर उनसे इंटरेक्ट किया कि आप वीडियो गेम्स की और बढ़ावा कर सकते, ताकि कोई दूसरा प्रधानमंत्री तो ये क्या लेना देना वीडियो गेम्स। लेकिन उनके पीछे ये कि क्रिएटिव ब्रेन पूरी दुनिया में, उसके पीछे बिजनेस भी है कि पूरी दुनिया का
जो ये गेम्स का जो बिजनेस है वो भी इंडिया कैप्चर करे, ये सोच है। तो बच्चों बहुत बहुत बधाई, आप बहुत अच्छे मॉडल लेके आए हैं और जितना मुझे दिख रहे हैं यहाँ से इतनी मेहनत करके दिन रात लग के आप सब आए, मेरी तरफ से आप सभी विजेता हो। पुरस्कार किसको मिले मुझे नहीं पता, लेकिन फ्रॉम माय साइड आई कांग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड स्पेशली मैं उन टीचर्स को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इनको गाइड किया। स्कूल के बीच की दूरियां खत्म होनी चाहिए, सब स्कूल मिलकर हम शिक्षा के लिए इस देश को खड़ा करने के लिए हैं। हमारे बीच में कोई प्रतियोगिता नहीं, प्रतियोगिता एक सीमा तक है, लेकिन हम मिलकर इस देश का निर्माण करेंगे। राष्ट्र प्रथम, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, विज्ञान के माध्यम से देना सीखें, यही मेरा एक संदेश है। मैं सभी अतिथियों का आपका स्वागत करते हुए इन बच्चों में जो कृष्ण है, जो सृजन मिट्टी के माध्यम से सृजन करता है, उस कृष्ण को भी प्रणाम करता हूँ कि अपने अंदर उस कृष्ण को जिंदा रखिए। आपका बच्चा जो अंदर है बालपन, वो जिंदा रखिए। मोदी जी कहते हैं कि अपने कितनी भी उम्र हो जाए अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखिए। मैं भी अपने बच्चे को जिंदा रखे हूँ। मैं डॉक्टर इसीलिए कराता हूँ कि हंसते रहो, हंसाते रहो। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत बहुत धन्यवाद। It is my immense pleasure to be here, and I would like to convey a lot of thanks to dynamic and energetic director of this institute. Dignitaries sitting on front row. Actually, I request the organizers for giving me 2 minutes. I would like to interact with the pillars of future sitting in this hall. I would like to endorse the one thing of director sir. He told that aeroplanes has been invented in India. My dear friends, students, please listen. This aeroplane has been invented long back, and entire literature is available in a book, literature, in the name of Yantra Sarvasva, written by Bharadwaj Rishi. That concept has been copied by one scholar and conveyed this message to Wright brothers and those people who patented this whole kind of things. India is great, and India really will be world leader very soon. My friends, without education and without creation, betterment of humanity and mankind is not possible. So, certainly you all young creators are here, and certainly having a world-class idea those people might have here. I would like to say one thing more, literally. Vidyamitra pravashashu, bhadamitra grahashashu, vyaditashu, usdamitram, dharmamitram mritascha. Education is the ultimate thing. Without education, betterment and well-being of mankind is not possible. So, I am not supposed to take much time because I requested to be here. Otherwise, I may be interactive for a few more minutes. Thank you very much, and I would like to convey thanks for my counterparts to be here with these young chaps and dynamic visionary Kumar sir. Thank you, sir. Thank you very much.
our project Tap and Tell. Most important आज हमारे स्टेम फेस्ट में बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच डॉक्टर पृथ्वी जी यादव वाइस चांसलर पद्मपत सिंघानिया यूनिवर्सिटी डबोक से आप यहाँ पधारे हैं और इसी आलोक परिवार से पुराने जुड़े हुए हमारे अनिल जी मेहता जो अभी डीन हैं यहाँ सिटी अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज विद्या भवन में। और आज यहाँ बच्चों की जो प्रतिभा है साइंटिफिक एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को डेवलप करने के लिए एक एग्जीबिशन यहाँ आलोक फतेहपुरा में हर वर्ष की तरह ये दूसरा साल है इस कार्यक्रम का। मैं समझता हूँ ये एक एस्टेब्लिश इवेंट हो गया है, हर साल हम इसको करेंगे। यहाँ से कोई ना कोई ऐसे बच्चे ऐसी वैज्ञानिक प्रतिभा निकलेगी जो कोई ना कोई क्रिएटिव मॉडल्स के माध्यम से इस भारत को आगे बढ़ाने में उनका योगदान इस विज्ञान और शिक्षा के माध्यम से निश्चित रूप से प्रतिभा निखार के रूप में निकलेगा। मैं यहाँ आलोक संस्थान में पधारे हुए दोनों अतिथियों का आदरणीय पृथ्वी जी को मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, मेरा बचपन का नाम पृथ्वीराज ही है। आप भी पृथ्वी और मैं भी पृथ्वी हूँ और अनिल जी हमारे जुड़े हुए पड़ोसी हैं, तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगा हमेशा जुड़े रहें, आते रहें। हम मिलकर ही इस देश का निर्माण कर सकते हैं, ये भाव यहाँ से जाना चाहिए। इसी दृष्टि से आज हमने सभी स्कूल को बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय राम जय राम जय जय राम।